Hi Rishabh, can you hear me? Hello. Yeah, yes, I can. How are you doing? Okay. Yeah, I'm doing great. Great. So, welcome everyone to another exciting session of Shark Tank Appeared Entrepreneur Series. Today we have a very special guest who embodies the spirit of innovation and perseverance. Imagine guys launching a startup while still in the college, securing funding from top investors, and now building a fast growing business that's making waves in the industry. Sounds unreal, right? But yeah, that's exactly what our guest Rishabh Ahuja, the visionary founder of Vismora, has done. So, Rishabh's journey is a masterclass in entrepreneurship, transforming an idea into reality, overcoming challenges, and proving that age is no barrier to success. So, if you have ever wondered how to break into the startup ecosystem, land opportunities into high growth companies, or even start your own venture, you are in for a treat. So, let's dive straight in. Welcome, Rishabh. Thank you so much, Shivangi, for all the good words. But I would always say that we are still in the learning stage. We are still building. We are still in the same journey. So yeah, achievements होते रहते हैं, but it is just one step of the ladder. That is what. That should be the spirit, Rishabh. So first of all, hello and welcome to the entire panel over here, everyone. I hope everyone is a college student over here, right? Right, right, right. Cool. So that is the best TAM I would like to address. Definitely, definitely. So So be let's dive into straight your journey of entrepreneurship. hmm So how does someone, while still in the college, decided to take the leap into this startup industry? so I would say ki story. First of all, I would like to know the audience point of view. Which language are we more comfortable in? Are we going to be with English or we want it We bilingual? can use a mix of both. That will Perfect. be, great. Perfect. So being bilingual will work better. So जर्नी शुरू हुई थी मेरे स्कूल लाइफ में. इट वाज नॉट कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. तो इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम looking at idols like Ritesh Agarwal. It was then we have Steve Jobs. Then we had Elon Musk. There were multiple idols I used to have, or सारे entrepreneurs थे. And I always had that craze of building something of my own. But school में आप नहीं कर सकते. You always have your exams, you have your boards. I was in my 11th. I was actually in my 10th class when I thought of entrepreneurship. But boards थे. तो इस thought कि अभी पढ़ेंगे बाद में बनाएंगे. Then it was 11th. The 11th थोड़ा light था. And I took commerce and I started getting more insights about business studies, about accountancy, about finance. And I was like, these things interest me. I want to do everything. कोई कहता था कि now you have to define your path. Either you want to go for finance, you'll do XYZ course. If you want to go for management, you'll do so and so course. And if you want to go into HR, you'll do these types of course. मैंने कहा था मुझे सब करना है. कैसे करूँगा मैं? तो for that, I got a word entrepreneur. The person who is doing everything from scratch and who is managing each and everything. हाँ, departmental specialization is always is always required, but getting a chance to do each and everything gives you a holistic growth. वो मुझे करना था. तो Right, right. 12th आई 12th के बाद आई हैड अ फ्यू स्टार्टअप आइडियाज बट कोविड केम थ्रू. कोविड में आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज थिंक बट नो वन न्यू मार्केट कब खुलेगी, मार्केट का क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, विल इट बी बैक टू द फेज इट वाज और नॉट. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, आइडियाज़ थे बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए. देन माई कॉलेज स्टार्टेड एंड आई हैड अ कपल ऑफ स्टार्टअप आइडियाज. आई वॉज लुकिंग एट द मार्केट. मुझे किसी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ विल यू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप इन a few lines, one or two lines. So entrepreneurship is finding a problem, giving a solution, and monetizing it. Nothing else. That's it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहली चीज़ पकड़ी कि फाइंडिंग अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है मेरे आसपास, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम. वो पेंसिल से लेके एक इंटरनेशनल लेवल तक सारी चीज़ें A to Z आई वॉज ऑब्जर्विंग फॉर अ मंथ 2 months. आई वॉज सीइंग US मार्केट कि क्या हो रहा है, लोग क्या बना रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है. तब मुझे दिखा कि कोविड के बाद से फिटनेस मार्केट इज इंक्रीजिंग एंड फिटनेस इज गोइंग टू बी बिग. दैट वाज द पोस्ट कोविड एरा. 2022 की बात है ये, 2022 एंड 2022 2023 के स्टार्ट की बात है. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मी पैक केम इनटू पिक्चर, मी पैक फिटनेस.
मैंने एंड रोहन स्कूल टाइम फ्रेंड्स, हमने कहा कि चलो कुछ बनाते हैं, और तीसरे किसी को कहाँ से लाएं, हम दोनों शुरू करते हैं। द बेस्ट हु यू कैन ट्रस्ट। जर्नी शुरू करी, और उसके बाद शार्क टैंक का कभी सोचा नहीं था, वी जस्ट अप्लाइड फॉर इट, एंड लक बाय चांस हमारा पहला फॉर्म क्लियर हुआ। वहाँ पे फेजेस होते हैं टू क्लियर, फर्स्ट फॉर्म क्लियर हुआ, सेकंड फॉर्म क्लियर हुआ, थर्ड वी अपलोडेड अ वीडियो, वो भी क्लियर हो गई, हम मुंबई में ऑडिशन दे के आए, वो भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमें पैनल पे बुलाया गया कि अब आपका शूट होगा। शूट में भी सारे जो जो आप एपिसोड्स देखते हैं वो सारे फीचर, जो आपने एपिसोड देखे वो सारे टोटल एज नहीं है, जितने शूट होते हैं उनमें से 50 to 60% ही एक्चुअली फीचर हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट टीआरपी। सोनी है, उनको भी टीआरपी चाहिए, दिल शो ओनली दोज एपिसोड्स जहाँ पे या तो कुछ मिर्च मसाला है या तो दे गॉट अ डील। वी न्यू दैट बिफोर। तो हमने कहा या तो क्लोज करेंगे या फिर कुछ उल्टा पुल्टा करके आएंगे। So we went into the show, and being the sophisticated guy we were, तो हमने कहा यार डील ही क्लोज करते हैं। तो we got a good offer, हमने भी क्लोज कर दिया, and we got featured, and that was our main goal. Once we got featured, हमने कुछ टाइम में देखा कि फिटनेस मार्केट इज नॉट द वे इट इज। हमने जैसा प्लान करा था वैसी मार्केट नहीं चल रही थी। कोविड के बाद से सब लोग वापस दही गोलगप्पे पे आ रहे थे, सब लोगों को खाना पीना ज़्यादा पसंद था, फिटनेस पे किसी को ध्यान नहीं देना था। फिजिकल फिटनेस की बात करें हम, एवरी वन वॉन्ट्स समवन, देर इज अ बिग डिफरेंस इन द फिटनेस मार्केट। एक फिजिकल फिटनेस है, जिम्स, योगा, जुम्बा, दिस इज समथिंग जो लोग नहीं करते। देर इज अ restriction towards it, you can call, there is a repellness towards this type of market. Then there is a second market जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात आती है। हेल्दियंस इज अ ब्रांड, वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करेगा, क्योंकि यू कैन ऑलवेज सेल कि मैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बेचूंगा, लोग खरीद लेंगे क्योंकि इट्स इजी टू बाय, इजी टू कंज्यूम। बट एक्सरसाइज करना इज नॉट ईजी, इसीलिए वो मार्केट बड़ी नहीं होती। दैट वॉज द रीजन वी प्लंज्ड इनटू कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। ट्रैवल केम इनटू पिक्चर कि ट्रैवल एवरग्रीन है, ट्रैवल विल कीप ग्रोइंग, एंड आफ्टर एनालाइजिंग इट मोर एंड मोर आई फाउंड कि यार ट्रैवल में हर चीज़ तो बन चुकी है। आपको होटल्स बुक करने हैं, यू कैन बुक, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म। आपको फ्लाइट्स बुक करनी है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। आपको अपना पूरा टूर पैकेज कस्टमाइज करना है, देयर आर मल्टीपल कंपनीज। क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर रहा और आज भी प्रॉब्लम है? तो वी फाउंड वीज़ास। वीज़ास इज़ द प्रॉब्लम। आज मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, मुझे पता है मुझे होटल कहाँ से बुक करना है, मुझे A to Z कहाँ से बुक करना है, पर मेरा वीज़ास कैसे होंगे ऑपरेट मुझे नहीं पता। मुझे वीज़ा में घुसना भी नहीं है, मुझे नहीं जानने फॉर्म्स, मुझे नहीं जाननी टेक्निकलिटीज़। आई वॉन्ट समवन एल्स टू डू इट फॉर मी। हमने का वील बी दैट समवन एल्स। B2C में बाद में आएंगे, लेट्स गेट इन टू B2B फर्स्ट, क्योंकि B2B ऑलवेज गिव्स योर बिजनेस अ सस्टेनेबिलिटी फॉर द स्टार्टिंग। क्योंकि आपने अगर मल्टीपल ब्रांड्स या फिर 10 से 15 कंपनी से भी अलाइन कर लिया, यू हैव अ स्टेडी बिजनेस एट फर्स्ट, देन यू कैन डाइव इन टू B2C। B2C कम्स विद अ कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर आप सब में पढ़ा हो तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता क्या है? अगर मुझे एक 100 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को लाना है और उस पर मेरे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो दैट इज माई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। और व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड विदाउट फंड्स at first, क्योंकि वो जो हमारी शार्क टैंक की डील थी दैट वाज फॉर मी पैक फिटनेस। लेटर ऑन व्हाट वी डिड, वी वेंट टू रितेश अग्रवाल एंड अमित जैन कि सर हमें अभी तो आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपकी मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि हम ट्रैवल मार्केट में आ रहे हैं और अभी 7 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला। फंड ज़्यादा चाहिए होंगे तो जब चाहिए होंगे हम आपसे तब लेंगे। तो दैट वाज द ऑफर एंड दे अग्रीड टू इट। दैट वाज आफ्टर द एपिसोड गॉट एयर। अब वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस, दैट इज व्हाट हैपेंड बैक स्टेज। उसके बाद विजमोरा स्टार्ट हुआ। विजमोरा, touchwood, it went great, multiple brands align हुए। Now we are working with 200 plus travel partners, and we are increasing. We have done 10,000 plus visas in a span of 10 months, and that is how the picture is. That's really truly inspiring, and I must say it takes a lot of courage to take that leap at in such an early age. And most of the students think that they need years of experience before starting something. But yeah, you definitely have proved that that mindset is wrong, for sure. So, Rishabh, many students are here who are having definitely great ideas, but execution is something which is a real, challenge. So, what was your turning point? You have also, shifted from this fitness to visa industry. So, execution must be a hurdle for you as well. Right. So I would say execution, yes, it becomes a hurdle, but market will teach you.
when you get into the market, अगर आप सोचोगे कि आप well prepared होके सीधा जाएंगे, this first of all, कॉलेज के बाद you hit life. कॉलेज से पहले तक you are preparing for the exam, you are getting ready for the exam, and you just write the exam. So you are all prepared. Day one से आपको सिखाया जाता है कि आपको prepared जाना है, then you have to get into it. But market में, life में ऐसा नहीं होता. You are never 100% prepared. आपके पास कोई syllabus नहीं है which you'll read and you'll grasp the knowledge and then you'll go into the market. ऐसा नहीं होता. You go into the market, market आपको खुद सिखाती है. When you will interact with people, when you will interact with agents, for example, in our market, we are interacting with travel companies, travel agents, और vendors हैं. There are multiple embassies which we are connected with. तो उन सब के साथ connect करने में day one में problem आई, day two में थोड़ा better हुआ, weekly चीज़ें smooth हुई, and by month on month it was smooth. Now we know how to deal with people, how to deal with so and so embassies, कैसे guidelines change होती है, what we have to do in those situations. Market आपको सिखाती है. Day one पे आप कभी भी prepared नहीं होंगे. So never be afraid to give it a try. Execute करना is all about getting into the picture and facing the reality. आपके सामने जो भी आ रहा है, you are just standing over there कि हाँ कोई बात नहीं, I'll take care of it and I'll give better. Yeah, that's really a great insight. Execution, जब आप market में enter करते हो, then only you get to learn. And there are multiple challenges I'm sure you have also faced. So how did you overcome those challenges? For example, challenge I would say कि travel market में I didn't knew anything, to be very honest. Travel market है क्या, कैसे visas operate होते हैं. But now being in the 21st century, हर एक resource हमारे पास available है. YouTube है, blogs हैं, सब कुछ है. And the Right. best part is कि जब आप कुछ launch कर रहे हो, आपको नहीं पता, hand on experience नहीं है. At least you can get ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस. तो आप यूट्यूब पे देखिए क्या कैसे होता है. आप अपने कंपेटिटर्स को स्टडी कर सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू. व्हाट आई डिड वाज, हमारे जितने 4 to 5 कंपेटिटर्स हैं, मैंने सबके कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करा, सब के साथ बात करी. उसके बाद जैसे वो भी B2B कंपनीज थे, तो आई ब्लफ्ड एज अ ट्रैवल एजेंट एंड आई कॉल्ड देम कि मुझे ऑन बोर्ड करो अपने सिस्टम में. मैंने सिस्टम में ऑन बोर्ड हुआ. मैंने एक हफ्ता तक उनका ट्रायल लिया, उनका यूज़र इंटरफेस देखा, कैसे काम होता है, कैसे वीज़ाज ऑपरेट होते हैं. तो मेरे कंपेटिटर्स ने मुझे सिखा दिया इन द फर्स्ट फ्यू डेज. एंड देन आई वॉज रेडी कि ठीक है, अब मुझे बेसिक्स तो पता है, तो नाउ आई कैन गेट इन टू द मार्केट. तो इट्स ऑल अबाउट डूइंग हेयर एंड देयर स्टफ. थोड़े बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं क्योंकि हर चीज़ डायरेक्टली तो नहीं आती. Right, right. I must say this was definitely a relatable struggle. I can definitely agree to this. So, Rishabh, coming to, Vismora, आपने pivot किया है business. So, what exactly gap saw in the market and Vismora का idea एकदम से कैसे आया आपको? सो गेटिंग ऑन टू दैट पिक्चर कि मार्केट में गैप क्या था. अब आई वेंट टू अ फ्यू ट्रैवल कंपनीज एंड ट्रैवल एजेंट्स. तो मैंने उनसे सुना कि आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है. तो दे ऑलवेज सेड कि यार होटल बुक करना हमारे लिए बहुत ईजी है. bookings.com, agoda.com, TBO, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे ऑप्शन है, हो जाता है. फ्लाइट्स के लिए ऑल्सो वी हैव रेज लाइव, गेट्स ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन है, हो जाता है. बट वीज़ाज में बहुत प्रॉब्लम आती है. वी हैव टू डू इट आर सेल्फ. ROI बहुत कम है, एफर्ट ज़्यादा है एंड रिस्क बहुत बड़ा है. क्योंकि आपका एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आपकी पूरी ट्रिप कैंसिल है, आपकी पूरी Right. बुकिंग कैंसिल हो जाएगी. तो इट्स लाइक अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ट्रैवल कंपनीज. उन्होंने अगर लेट्स सपोज हम इसको नंबर्स में अगर क्वांटिफाई करें, तो एक दुबई के पैकेज की ATV होती है. ATV आप सबको पता है. ATV अगर मैं आपको कहूँ तो उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप मान लीजिए, AOV कह लीजिए चाहे ATV कह लीजिए, तो उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है 1.5 से 2 लाख रुपए पर पर्सन, 1.5 to 2 लाख रुपीज़, जिसके अंदर उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जाती है 4 to 5%. उस कॉस्ट के बाद अगर वो एक वीज़ा की वजह से पूरा पैकेज रिजेक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी हाई लॉस ऑन द ट्रैवल कंपनी. तो दे हैड दिस प्रॉब्लम कि यार हमारा रिजेक्शन रेट हमें कम करना है. व्हाट अबाउट मी पैक. सो वील कम ऑन दैट पार्ट एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, लेट्स क्लोज दैट. तो व्हाट अबाउट मीपैक. मीपैक इज नाउ डिसॉल्व्ड. The reason for it was कि fitness market is not increasing that much, and players like FitPass and players like WTF gyms are into the market, and वो भी कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं. आप देखिए 8 साल से अगर कोई कंपनी बिल्ड कर रही है and they are at 51% market share and still not yet profitable and not yet have made an impact, तो मार्केट साइज कैसा है. मार्केट साइज इज नॉट दैट गुड. अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं और उतने ही एफर्ट में आपको कुछ बेटर मिल सकता है, तो व्हाई नॉट. आई हैव Right, स्टेट. right. तो अगर एक एफर्ट लगा रहा हूँ एक्स अमाउंट का, तो एटलीस्ट आई वांट 5x रिटर्न. ओनली देन आई विल गेट इनटू दैट मार्केट.
तो जब मुझे वो Yes. दिख गया नंबर, आई वेंट बैक कि नहीं, ये नहीं करना। इंस्टेड आई pour more money, more funds, उससे बेटर है कि लेट्स स्टेप बैक एंड बिल्ड समथिंग डिफरेंट। गेटिंग बैक टू विजमोरा, तो वो जो पेन पॉइंट था ट्रैवल कंपनीज का, मुझे समझ आया कि हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करा कैसे जा सकता है? दो चीज़ें। एक, हाई ऑप्स। दिस वीज़ा इंडस्ट्री इज हैवी ऑप्स बिजनेस। ऑप्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इन द सेंस कि कोई भी कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी कैसे हो रही है। तो वीज़ा में ऑपरेशंस इज अप्लाइंग द वीज़ा, गेटिंग इन टच विद एम्बेसीज, गेटिंग इन टच विद द कॉन्सुलेट्स। दिस इज ऑपरेशंस। दूसरा, टेक्नोलॉजी की लेयर। इफ़ वी ऐड अ लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, वी वेंट डीप इनटू द इंडस्ट्री, हमें पता चला डॉक्यूमेंटेशन इज वन प्रॉब्लम। Mm-hmm. नहीं, ये लोग ऋषभ, you're on mute. Unmute कर लो आप अपने आप को. हेलो। Yes. Oh, that was by mistake. So where were we? So you from the starting. Okay, cool. So I was just saying कि I saw a message over here मी पैक के बारे में कि मी पैक क्यों बंद हुआ। तो वो वाली चीज़ क्लियर थी ऑडियो में, या फिर आई हैड टू रिपीट दैट एज वेल? I mean, when you started, आप mute पे थे. ओके ओके ओके। तो Yeah. मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि व्हाट अबाउट मी पैक, तो आई वाज जस्ट Yes. सेइंग कि हाँ, मी पैक इज डिसॉल्व नाउ। तो मी पैक इज नो Hmm. मोर इनटू द बिजनेस। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अगर मार्केट में 51% शेयर फिट पास का है और स्टिल इन 8 years दे हैव नॉट मेड अ बिग इम्पैक्ट इन द मार्केट, तो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, प्लेयर्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं उतने ही एफर्ट में ज़्यादा ROI लेके आ सकता हूँ, एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट में 5x अगर मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों उस मार्केट में रहूँगा? तो दैट वाज द रीज़न वी स्टेप बैक, मी पैक से शिफ्ट करके विजमोरा में आ गए। और जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई थी ट्रैवल कंपनीज और ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, दैट वाज कि उन्हें राइट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट टेक्नोलॉजी एंड राइट रिसोर्स नहीं मिल रहे थे फॉर वीज़ाज, एंड दे डिडंट वांट अ पर्सन टू बी हायर्ड और हर वीज़ा वो करे, क्योंकि आप एक इंसान से 100 कंट्रीज तो नहीं करवा सकते। डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट ऑप्स हैं, एंड डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है। So that is where we Hmm. come in. Yeah, definitely a wonderful perspective. It's always exciting to see कि innovative solutions आप real world problem से कैसे निकाल लेते हो. And more about innovation, I would say कि market में innovation is just a layer. उससे पहले Hmm. it's more about the demand. If there is a Right. demand, only then you can innovate. अगर market में Right. सिर्फ innovation से भी कुछ नहीं होगा। तो as we saw, Indian travel market is going to be a $3 trillion market by 2030. अब इस मार्केट साइज के अंदर देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू ट्रैवल इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ेगा तो क्या चीज़ें बढ़ने वाली हैं? टिकट्स बढ़ेंगी, आपके होटल्स बढ़ेंगे, एंड आपका फॉरेक्स बढ़ेगा। उसके साथ साथ वीज़ास भी बढ़ेंगे। तो दैट इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन की डिमांड इज़ देयर। ठीक है, डिमांड आपको पता चली, आपका फर्स्ट चेक बॉक्स हो गया क्लियर कि ठीक है, मार्केट को मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सेकेंड, हाउ यू कैन सॉल्व दैट? इफ़ यू हैव राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, राइट अमाउंट ऑफ पीपल, एंड यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज दैट, तो आपका सेकेंड चेक बॉक्स हो गया। थर्ड पे आती है इनोवेशन की हाँ, अब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा, बट बाकियों से बेटर क्यों हो, वहाँ पे इनोवेशन है। तो वो हमने क्रैक करा, एंड नाउ वी आर इन टू द जर्नी। Very inspiring, I must say, Rishabh. This is really inspiring for the students who are here and who are listening us today. So, Rishabh, how has been your experience with, securing funding? As you have told कि आपने Shark Tank से funding नहीं ली थी. You just gone for the mentorship. राइट। And how was it like, pitching on the Shark Tank? तो शार्क टैंक, मोर अबाउट, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं हमेशा से शार्क टैंक देखता था ऑन टीवी, एंड टू बी टू द मासेस, मैं शार्क टैंक इंडिया नहीं देखता था, मैं शार्क टैंक US देखता था। एंड दैट वाज बैक इन 2017 2016 व्हेन आई यूज्ड टू वॉच शार्क टैंक। तो तब से मैं शार्क टैंक देख रहा था, हर ईयर देखता था। अमेजोन प्राइम पे उनका पूरा सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा था, और मैं डेली एक एपिसोड देखता था। एंड आई वाज ऑलवेज वंडरिंग कि इंडिया में शार्क टैंक कब आएगा। तो जब इंडिया में आया, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट कभी सोचा नहीं था कि आई वुड पिच देयर। तो आई वुड से कि इट वाज लक बाय चांस। आई filled up the form, got selected again and again. I went to the tank, and I was at the stage,
जो मैं 6 साल पहले देख रहा था टीवी पे, मैं वहाँ पे खड़ा था, तो दैट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आइडल जो मेरे थे रितेश अग्रवाल, ही वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज स्पीकिंग टू हिम, आई वाज हैविंग अ वर्ड विद हिम, एंड आल्सो उन्होंने मुझे डील दी। तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। ड्रीम कम्स ट्रू। ट्रू, वेरी ट्रू। राइट राइट राइट। सो विदाउट फंडिंग ऋषभ कैसे एक बिजनेस सेटअप करते हो आप? तो आई वुड से कि विदाउट फंडिंग आप स्टार्ट तो कर सकते हो कोई भी बिजनेस, तो इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ फंड्स। आप आई वुड से कि देखिए, विजमोरा इज बूटस्ट्रैप्ड। फॉर बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस यू रिक्वायर 20 to 40,000 रुपीज एटलीस्ट टू स्टार्ट। अभी हमारा विजमोरा जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट मंथ के अंदर आई वॉज द ओनली वन हु वाज वर्किंग। आई हैड माई लैपटॉप, आई हैड अ फ्यू कनेक्शन जिनको मैंने डे वन से, तो हमारी खुद की रिपोजिटरी भी नहीं थी, हमारी खुद की टीम नहीं थी जो वीजाज लगा रही थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई फाउंड अ फ्यू ग्रेट वेंडर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज, 4 5 कंट्रीज के लिए। उनसे एक मिनिमम कॉस्ट पे लिया, एक अपर मार्क करके बेचा। फॉर 1 मंथ वी डिड दिस एंड एक फंड बन गया। उसके बाद वी हायर्ड अ फ्यू पीपल एंड ग्रेजुअली वी हैव a team of 20 plus now, and now we are into the market। अब हम खुद से करते हैं सारे वीज़ाज, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। पहले हमने खुद आउटसोर्स करा और बाद में अपर मार्केट पे जाके बेचा, तब जाके धीरे धीरे कंपनी बनी थी। तो डे वन पे तो हमारी कॉस्ट भी नहीं थी कुछ खास। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और कर सकते हैं स्टार्ट। आई वुड से कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देयर इज ऑलवेज एन MVP दैट कैन बी डन। MVP इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट विजुअलाइज कर रहे हो अपने दिमाग में कि मैं ये बनाऊंगा, उसका एक बेसिक वर्जन जो कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एफर्ट और मिनिमम टाइम में बन सकता है, जिससे मार्केट टेस्ट हो जाएगी। और वो टेस्ट हो गई तो नाउ यू आर रेडी कि हाँ अब मैं फोड़ दूंगा मार्केट में, बस। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आर MVP This has been a golden tip. एग्जैक्टली। Yeah, this has been definitely a golden tip for the students. So, Rishabh, coming to networking and mentorship, how important it is in a startup journey or in an any entrepreneurship journey कि आपके पास एक right mentor और आपके एक right networking आपको कैसे help कर सकती है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि नेटवर्किंग, मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, एंड आई एक्चुअली एम वेरी फॉन्ड ऑफ कोट्स। तो एक कोट है, शायद आप सबने भी देखा ही होगा कहीं ना, कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ पीपल यू नो, the more amount of resource you can get, and that will connect you to more amount of customers as well। क्योंकि जितने नेटवर्क्स आप बनाओगे दैट विल लीड टू वर्ड ऑफ माउथ, और उसी से आपका बिजनेस बन जाएगा। तो डे वन पे हमारे जो फर्स्ट क्लाइंट्स थे, दे वर ऑल रेफरल्स। जो हमारे नेटवर्क के लोग थे, जिनको मैं जानता था, जिनको मेरी फैमिली जानती थी, तो डे वन के हमारे क्लाइंट ही वहीं से आए हैं। एंड रेफरल से ही ये बिजनेस शुरू हुआ है, क्योंकि डे वन पे हमारी कॉस्ट क्यों नहीं थी, हमने मार्केटिंग ही नहीं करी। B2B पे मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। हमने कुछ ही कस्टमर से स्टार्ट करा, उन्होंने हमने बिजनेस दिया, हमने उन्हें अच्छी सर्विस दी, एंड वर्ड ऑफ माउथ से चेन बनती गई। तो नेटवर्किंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग इनटू नेटवर्किंग सेशंस, गेटिंग इनटू नेटवर्किंग मीटिंग्स। अगर आपने 100 लोगों में से 10 लोगों से भी कनेक्ट कर लिया ना, तो आपका ROI निकल गया उस इवेंट का। Okay, that's really great. As it is said, no one succeeds alone, है ना? Alone single कोई भी succeed नहीं करता. You need people, है ना? लोग साथ में ही निकलते हैं. And having right mentors and networks can truly accelerate your growth. ट्रू, वेरी ट्रू अबाउट दैट। So, Rishabh, talking about opportunities जो students and freshers के लिए Vismora में we can have. So, what roles is Vismora currently hiring for? ठीक है, तो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट रोल्स, वी हैव 2 to 3 रोल्स अवेलेबल। तो आई गेट दैट इनटू पिक्चर। वी हैव 3 रोल्स अवेलेबल, जिसमें एक में है इट्स अबाउट मार्केटिंग। अ पर्सन हु कैन हैंडल द entire marketing campaigns, social medias, he or she can handle email marketing, WhatsApp campaigns, and a whole approach about that कि B2B में क्या मैसेज जा रहा है, किस डे किस सीजन के अंदर, विच कंट्री इज अ टॉप टारगेट, हमारी टाइम को क्या दिखाना है, गुजराती टाइम को क्या दिखाना है, मराठी टाइम को क्या दिखाना है, साउथ को क्या दिखाना है, और किस टाइम पे क्या फीचर हम कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मार्केटिंग रोल है। सेकेंड, वी हैव एन ऑप्स रोल। ऑप्स के अंदर बैक एंड में यू हैव टू अप्लाई वीज़ाज, यू हैव टू गेट इन टच विद, यू विल बी एक्चुअली एन अकाउंट मैनेजर। आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ट्रैवल कंपनीज दे दी, यू आर गोइंग टू हेड देम, you are going to fetch business out of them, you are going to apply those visas with the backend ops team, and you have to be in between. You'll be an intermediary between the company's in-house team and the travel company, that is account manager. And third, we have the sales opportunity, that is work from home. And by the way, all 3 of them are work from home.
क्योंकि स्टूडेंट है, वी टोटली अंडरस्टैंड कि कमिंग टू ऑफिस विद दी कॉलेज बैकलोड्स विल बी एन इशू फॉर यू गाइस, तो वर्क फ्रॉम होम इज ओके फॉर अस. थर्ड इज द सेल्स रोल. सेल्स रोल के अंदर वी स्पेसिफिकली वांट पीपल हु आर मोर इनटू द देयर मदर टंग, जो पंजाबी जानते हो, मराठी जानते हो, कन्नड़ जानते हो, उन्हें अपनी मदर टंग पे कॉन्फिडेंस हो. वी वांट दैट, क्योंकि इंग्लिश नहीं चलती B2B के अंदर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रैवल. जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात करें, इंग्लिश नहीं समझते हो, दे ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर मदर टंग, एंड वी वांट पीपल फ्रॉम दीज रीजन्स. That's exciting. Guys, take notes. This could be your chance to, work at a high growth startup. So, Rishabh, what skills do you prioritize, when hiring interns or maybe full-time freshers? So I just saw a question over here, which said that local agents might be a problem for Vismora. Actually, not in such a way. I would sorry to interrupt you, Shivangi. I would like to answer that No, no, question. no worries. This is for them only. True, क्योंकि that interests me. तो Yeah. I'll first describe कि ट्रैवल मार्केट में B2B में कितने टाइप के एजेंट्स होते हैं, कितने टाइप की मार्केट किस वे में डिवाइडेड है. तो मेनली वी हैव 3 P&Ls. फर्स्ट P&L इज ट्रैवल कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स, जिसके अंदर वी हैव कंपनीज लाइक डेयोर, ट्रिपजिगो, वी हैव ईज माई ट्रिप, इक्जिगो. ये सारी कंपनीज हमसे वीजास करती हैं. दीज आर द टॉप टायर क्लाइंट्स. फर्स्ट P&L. देन वी हैव सेकंड P&L. सेकंड P&L के अंदर वी हैव मिड टू बिग साइज ट्रैवल कंपनीज एंड ट्रैवल एजेंट्स, जो अपने रीजन में, अपनी सिटी में दे आर डूइंग वंडर्स. तो वो हमारा सेकंड P&L आता है. थर्ड P&L इज रीजनल ट्रैवल एजेंट्स. अब रीजनल ट्रैवल एजेंट्स को, एज यू नो, एज आई सेड, रीजनल ट्रैवल एजेंट्स, तो सबका क्वांटम भी अलग अलग रहता है इन तीनों P&Ls का. जो हमारी फर्स्ट P&L है, उनके क्लाइंट्स मुझे अगर मंथली लेट्स सपोज 100 वीजास देते हैं, तो सेकंड P&L में पर एजेंट आई वुड गेट 40 to 50 वीजास. एंड गोइंग टू द थर्ड P&L आई विल गेट 5 to 10 वीजास फ्रॉम देम पर मंथ. तो ये P&L इस वे में डिवाइड है. तो और इसी सेम वे में आप अपना फोकस भी डिवाइड करेंगे टुवर्ड्स ऑल थ्री, क्योंकि बीइंग इनटू द बिजनेस आपको पता है आपका जो मेजर चंक है वो फर्स्ट क्लाइंट से आ रहा है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम इनटू दैट, मोर रिसोर्सेज इनटू दैट. सेकंड के अंदर आपको मिनिमल आ रहा है, तो ठीक है, दैट विल बी कंसिस्टेंट. आप उनको टाइम टू टाइम फ्लायर्स भेजोगे, टाइम टू टाइम उनके साथ कॉल्स करोगे. बट थर्ड वाले के साथ आप इनके सामने अगर अवेलेबल भी रहोगे, दे आर मोर प्राइसी. तो इसीलिए हम इस प्राइस वॉर में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वी आर इन टू अ सो कॉल्ड प्रीमियम सेगमेंट. हम प्राइस वॉर में इतना नहीं पड़ते, क्योंकि वीज़ा एज अ प्रोडक्ट इट सेल्फ इज़ अ लो टिकट साइज वैल्यू. एक वीज़ा 1500 to 4000 की रेंज के अंदर रहता है. दैट इज़ द एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर एवरी वीज़ा, एंड द मार्जिन्स आर ऑल्सो मिनिमल. तो इसके अंदर भी अगर आप प्राइस वॉर्स करेंगे जस्ट टू गेट मोर नंबर्स एंड मोर वीज़ास, तो दैट डजंट मेक सेंस टू अस. First of all, as we are a bootstrap company, we don't want to burn money. That was the philosophy from day one. हमें burn नहीं करना, just to showcase numbers. तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट. तो ये तीनों P&Ls में हमारा फोकस डिवाइडेड है. तो थर्ड P&L में हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, इन्हें हम मेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, एंड दैट इज़ इनफ टू कन्वर्ट देम. तो इसीलिए रीजनल इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. Right, and now I would Yes. like to come to your question. Yeah. So, Rishabh, I was asking what skills do you prioritize, when hiring for maybe freshers or for interns? Only one, willing to learn. That's it. उसके अलावा कुछ भी नहीं. क्योंकि आई एग्री, एवरीवन हैज़ देयर डे वन. हम ये नहीं कहते कि हमें एक्सपीरियंस स्टाफ ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई भी एक्सपीरियंस स्टाफ डे वन पे फ्रेशर ही था. तो इट्स ओके टू बी फ्रेशर, बट इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, दैट्स ओके. हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं. हमें भी किसी ने सिखाया था, हम किसी और को सिखा देंगे. तो इट्स ओके, द चेन हैज़ टू. Super valuable tip, definitely. So, Rishabh, what qualities should freshers, develop to thrive in a startup ecosystem? It is generally said that there is a lot of pressure and a lot of, hustle going on in the startup environment. So, what kind of skills and qualities they should be having if they want to grow themselves in the startup? टू थिंग्स आई वुड से. वन इज़ हार्ड वर्किंग, सेकेंड इज़ परजर्वरेंस. Right. हार्ड वर्किंग क्यों? क्योंकि काम बहुत आता है. आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हो, वाई एम नॉट सेइंग पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो सैलरी फिर भी मिलती है, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हो तो काम तो करना पड़ेगा. दैट इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी बोल्ड लाइन विच आई एम सेइंग. बिना काम करे कुछ भी नहीं होता लाइफ में.
काम तो आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क. सेकंड, परसेवरेंस. you'll have to wait. अगर आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा. इट्स नॉट लाइक कि आपने डे वन में, अगर आपको डे वन पे सब तारीफ करेंगे, नहीं. you'll have to keep proving yourself, and that will come with time, क्योंकि your managers, your team is actually reviewing you on a daily basis, and slowly and steadily it will take shape, it will come into picture. So these two things are very important. Right, definitely. So that is all from my side. If we have questions from the audience, we are open to discussion. So guys, you can raise your hands. I will allow the mics and you can ask your question directly to Rishabh. Let me know if you have any questions. One question, so Shivam Prajapati is having a question. Yeah, I'm allowing the mic. Yeah, Shivam, you can unmute. Shivam, you can ask your question. I've allowed the mic for you. Yeah, Shivam, can you hear us? I think he's not able to. Unmute. No worries. I saw a question in chat box. What you think when you decide the name of the company Vismora, Visa and more? To start with visas, let's see, more will come. Attractive. So the next question we have is from Akansha. Akansha, I've allowed you mic. You can unmute yourself and you can ask the question. Hello, sir. Hello, ma'am. Good evening. Hi, Am I Akansha. audible? Yes, you're audible. Sir, as you told about the Vismora, the visa app. So, sir, what's your future outlook like in next 12 to 18 months? What your strategic planning about your company? So that's a good question. About the product, I would say we are trying to build something different into the B2B segment. हम OCR ला रहे हैं, थोड़ा AI interface ला रहे हैं, जिसके अंदर होगा क्या, if you want to get a visa applied, we have seen कि जो travel market है B2B specifically, they are more used to WhatsApp. WhatsApp पे उनको documents आते हैं, they forward on WhatsApp and they are all on WhatsApp. उनका ecosystem WhatsApp पे है. So we are building a AI generative bot which can fetch all the documents, apply the visa directly on the portal and save time. जिसमें क्या होगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा और वो बैक एंड से ही टेक के थ्रू लाइन हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्स के पास पहुंच जाएगी फाइल्स. तो दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. Okay, great. Yeah, do we have any other question? Guys, raise your hands if you have any. Shivam. Yeah, Shivam. Please unmute yourself. Or Shivam, you can drop your question in the chat box also. So do we have any other question from anyone? I feel they are nervous or something. Right. There might be. तो होते हैं लोगों को. Right. I don't see any hands raised. So yeah, let's wind up. So Rishabh, this has been definitely an incredible and very much valuable conversation. Your journey proves that age, experience, or background should never, hold anyone back. And it's all about the mindset, resilience, and taking the action. So to all the audience, if you have been, sitting on an idea or waiting for the right time, let's be your sign. Let's this be your sign to start now. If Rishabh can do it, so you can. So a huge thank you to Rishabh for sharing your journey and insights. We can't wait to see what's next for Rismora. Thank you so much, Rishabh, and thank you so much, everyone. Thank you so much for inviting. I mean, it's a You're pleasure most to welcome.